के मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है नेल्स ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। कल मैंने आपको एक वीडियो दिखाऊंगी बोला था, उसी को ढूंढ रही थी, टाइम लग गया। तो अभी मैं वो 5-10 मिनट्स रहेगा शायद, वो वीडियो देखिए फिर हम बात को सुनिए। Because from its origin till now, how many catastrophes have happened? सुनाई दे रहा है साउंड? ओके, शेयर। हाँ जी, And ये each day we want to validate those catastrophes. 6-7 मिनट्स रहेगा। And feel those fearful, guilty feelings so that you can tell your pituitary, shut up. पिट्यूटरी ग्लैंड के ये These are in medical terms called negative feedback response. If there is something excess, then the body sends a negative feedback response for something else over here to shut up. It is beyond your volition. It's beyond your voluntary what's a kabu control. It's beyond that. It is so deep in our unconscious, unawakened, shut it up human beings. So friends, today we will do one process, one meditative process. There are many we can do, but today we will do one which is come to me very naturally, where we are going to meditate on our neurohormonal axis. And this neurohormonal axis is essentially in the center here. All of you do, once you do this is what Eric Berglund used to make us do, right? Run through the center into your heart. Just coming from up, you go into in front of your third eye, in tip of your nose to the center of your sternum into your heart. Just doing this many times is so good to know that this is our central axis. That our two brains, the right hemisphere and the left hemisphere, right hemisphere, these two hemispheres of the brain, the left and the right, they are like this. You know, you must have seen the pictures of the brain two hemispheres. Yes or no? So I'm just going to share with you one short picture. Okay, let's see if all of you can see my slide. Can you just give me a feedback if you are seeing this slide? Yes. Yes, thank you. So you can see here that when this brain is sliced from the middle, right, from the center, then you can see here these two things, pineal gland and the pituitary gland. Can you see this too? And this area is also around here is called the third ventricle. This red part which is seen here in the moving circle as in Wikipedia. It's called the third ventricle. You can see where it is when it comes in between your two eyes. Can you see that?
That part is called the third ventricle. Now, what is this third ventricle? Third ventricle is a very vital part of a human brain. It's a small little cave. And in this cave is most vital fluid. We talk of blood, we talk of lymphatic vessels, but there is our cerebrospinal fluid. It's a very important part of a brain which holds and circulates the cerebrospinal fluid. You can call this as a golden cave. Golden cave inside that holds the magic, because it has information inside. That fluid has information inside. Like we did water meditations in our journey within, where we saw how the master Emoto told us that water carries memories. Some of you who did the journey within have done these water meditations. So that third ventricle, the cave, one of the masters called it a cave of Brahma. And around it are this pituitary and the pineal gland, which are very significant. Now, I will need Dr. Raju, do you have a pencil or something? I have forgotten my pencil, but still I will try to somehow demonstrate. Do you have anything particular? Give me a moment. So friends, what is very significant is this third eye, okay? Our meditation today is going to be around our third eye, but in a little different way. मास्टर्स, चलिए थर्ड आई के बारे में बताया हमने, कहाँ रहता है, कैसे उसका प्लेस, उसका डायरेक्शन क्या होता है, उसका पोजीशन, एंड वो कैसे दिखता है. अपने ये ब्रेन को खोलेंगे तो ऐसे दिखेगा, तो उसको जूम करके दिखाया. उसी के बारे में उन्होंने आधे घंटे मेडिटेशन कराया था कल. तो क्या ब्रीथ को देखते देखते सीधा इधर ही इसी को देखते हुए करो करके मेडिटेशन कराया. कोई ऐसे रूम में जाओ कि कोई एक विंडो दिखा, वॉल दिखा, बोले ये यहाँ का दिखाते हुए मेडिटेशन कराया. तो कल भी हमारा स्पीच ही हो गया था, बातें ही करे, टाइम ही नहीं मिला था. आज हम मेडिटेशन करते हैं थर्ड आई, जो अपना पिट्यूटरी ग्लैंड एंड थाइमस दोनों ग्लैंड के बारे में बताया. यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट पोर्शंस होते हैं ब्रेन का. राइट पोर्शन ऑलवेज, राइट पोर्शन ब्रेन का एक्टिवेट हुआ है तो आप स्पिरिचुअल थिंकिंग करेंगे. लेफ्ट है तो संसार के बारे में सोचने वाले, लेफ्ट ब्रेन उनका एक्टिवेट रहता है. अब लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट के बाद हम जब स्पिरिचुअल का, मेडिटेशन के बातें कर रहे हैं, करने का हमारे मन में सोच आ रहा है, तो वो तब आपका ब्रेन, राइट ब्रेन एक्टिवेट हो रहा है, इसका मतलब. तो दोनों को कैसे दिखाया, ऐसे पोजीशन में दिखाया उन्होंने. ऐसे ही होता है ना ब्रेन, आप देखेंगे तो ये हेमिस्फीयर, ये बीच में सेंटर होता है, तो राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर बोला जाता है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड का. तो आप इसको खोलेंगे, ये जो है, ये है ना फिंगर, ये थर्ड आई का ये है, ये जाके यहाँ सेंटर में इंटरसेक्ट होता है, यहाँ से और यहाँ से एक लाइन खींचेंगे तो पीछे जाएगा, यहाँ से एक लाइन पे खींचेंगे तो नीचे की तरफ सीधा बोले ना, वो दोनों ये वाला लाइन और ये लाइन सीधा ऐसे, और ये दोनों जहां इंटरसेक्ट होते बीच में,
वहीं पे अपना ये टाइम वो वाला ज्ञान चक्र इसका थर्ड आई का पोजीशन जगह वहां पे होता है। तो आप जब इमेजिनेशन करते हो केव जैसे होता है, गोल्डन केव नहीं बोल रहे थे हम, जब बोलते हैं कभी कभी आप जब थॉटलेस होते तो यहाँ पे अपना ध्यान आता है, आपको नहीं अब फील हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो यहाँ ध्यान ले आइए, अपना थॉटलेस हो जाते हैं। तो यहाँ आता है तो फिर टनल जैसे आपको दिखता है, उस टनल के थ्रू आपको जर्नी एंटर करना है। जाते जाएंगे तो आप दोनों दोनों इंटरसेक्ट का जो दोनों ऐसे देखिए, अभी ये एग्जैक्टली ये है, ऊपर से आ रहा है मतलब ऐसे दिखा है या ऐसे दिखा, तो ये वाला जो है दोनों प्लस क्या हो गया ना, उस जगह पे आपका वो थर्ड आई दिखेगा। तो उसको हम ज्ञान चक्षु ज्ञान ज्ञान चक्षु बोला जाता है, ध्यान चक्र बोला जाता है। तो उस चक्र को महसूस करते हुए आज हमें इतने दिन से इमेजिन ही करते थे, एक्चुअल में है, उसको अपने अभी देखा ना पिक्चर में, अब ध्यान करने में इजी हो जाएगा। उस पिक्चर को हम विजुअलाइज करके ध्यान कर सकते हैं। चलिए आज हम उसी के बारे में ध्यान करते हैं, अपना राइट हेमिस्फीयर को एक्टिवेट करते हैं, यानी आध्यात्मिक ब्रेन को हम एक्टिवेट करें। चलिए मास्टर्स ध्यान में बैठते हैं। Clasp your fingers, cross your legs and slowly प्यार से अपना दोनों नेत्र बंद करेंगे और अपना पूरा शरीर को रिलैक्स करेंगे। लंबी लंबी श्वास लीजिए, नोज से, मुंह से छोड़िए। ज्यादा मोर टाइम, जितना आपसे भागने जैसे ऐसे लग रहा है, बिल्कुल आपका श्वास हम छोड़ नहीं पा रहे, तब तक उसको छोड़ते जाना है। एक बार और श्वास लीजिए, breathe in from nose and breathe out from mouth. Relax your whole body. All body organs को relax करना है, तनाव मुक्त करना है। Then start observing your सहज natural breathe. श्वास ಉಸಿರನ್ನು ಗಮನಿಸಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. सहज प्राकृतिक श्वास, श्वास ऑब्जर्व करते जाएंगे, उसको अंदर जाते हुए कहाँ तक जा रहा है देखते जाइए। जब बाहर आता आप उसको महसूस करना है, श्वास कहाँ तक जा रहा है। जब हम वो अपने आप होता रहता है, थ्रू नोज ही होता है, और बाहर जाता है तो फिर कितना डीप तक बाहर जाता है। तो इसको हम देखते जाएंगे तो क्या हो जाता है, हमारा विचारों की तरफ हमारा मन हट जाएगा। 3 डायमेंशन बोलते हैं ना, विचारों पे ध्यान ले आना, पहले शरीरों के बारे में सोचना फर्स्ट डायमेंशन, सेकेंड डायमेंशन है विचारों को सोचना, मतलब विचारों के तरफ ध्यान ले जाना। अब थर्ड डायमेंशन है अपना सहज श्वास को देखना। अब फोर्थ डायमेंशन आपको यहाँ अपना कंसंट्रेशन में नहीं बोला जाता है, अपना ध्यान यहाँ आ जाता है, उस लाइट को देखना। थर्ड डायमेंशन आयाम बोला जाता है। फर्स्ट आयाम, सेकेंड आयाम, फर्स्ट आयाम बॉडी, सेकेंड आयाम अपना थॉट्स, थर्ड आयाम अपना श्वास है। तो ये चीजें तो हमें महसूस हो सकता है, एक एक चीजें आप महसूस करते जाएंगे तो तीसरे आयाम तक हम इजीली महसूस कर सकते हैं। फोर्थ आयाम को महसूस करने के लिए हमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगा। अब प्रैक्टिस करते जाएंगे तो इस आयाम को भी हम देख पाएंगे। और फिफ्थ डायमेंशन मतलब पूरा ऊपर के परमात्मा से कनेक्ट होगा। अपने लैंग्वेज में बोला जाए तो परमात्मा से आत्मा को, फोर्थ में आत्मा को समझेंगे, आत्मा से परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ना इज वर फिफ्थ डायमेंशन। यानी इस लोक से, इस शरीर से उन्नत लोक के परमात्मा जो वहां लाइफ वहां रह रहे, लाइट है, ये स्मॉल लाइट रहेगा तो बिग हाई, ये 100 वाट का रहेगा तो 1000 वाट का समझ लें, दैट इज द डिफरेंस। और एक इजी चीज है तो हमारा तो टिम टिम से
घर पे हम दिया जो जलाते हैं ऐसे है, तो वो परमात्मा का जो है चैतन्य शक्ति, सन का जो रेस, सन का रेस कोई देख सकता है तो वो क्या है, बहुत प्रैक्टिशनर हो सकता है, कोई देख सकता है। तो ऐसा परमात्मा, अब सन रेस को हम देख नहीं पाते इस साइड से, तो हमें उसके लिए कुछ ग्लास लगा के देखा जाता है, उस रेस को देखना है। तो परमात्मा को वे देखने के लिए हमें ग्लास लगाना है। वो क्या है, अपना श्वासों को ऑब्जर्व करने का ग्लास, ध्यान करने का। उसको करते जाएंगे तो वो चीज हम देखेंगे, अनुभव करेंगे, उनके साथ आत्मा और परमात्मा के बीच कनेक्शन जोड़ पाएंगे। चलिए हम इसी चीज को महसूस करते हैं, इस चीज को हम पाएंगे, एक अपना एम, पूरी उद्देश्य उसको पाने का, एनलाइटन होने का, अपने आप को शरीर नहीं आत्मा समझ के आगे बढ़ने का आगे वाला स्टेप ये है। चलिए मास्टर्स, अभी आप अपना श्वास को ऑब्जर्व करते चलिए। मैं म्यूजिक लगा दूंगी, म्यूजिक के साथ स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर अपने श्वासों को observe करते चलिए। धीरे धीरे अपना श्वास का वेग कम होता जाएगा। जैसे धीरे धीरे हम श्वासों को ऑब्जर्व करते करते जीरो स्टेट में आ जाते हैं, तो ब्रह्मरंध्र ओपन हो जय गौ जाता है। माता, जय गोपाल। आप देख रहे हैं गोकुल धाम गौ सेवा महातीर झज्जर हरियाणा में। ये हमारा आईसीयू एनर्जी अपने शरीर में एंटर करेगा, कॉस्मिक एनर्जी एक एक अपने शरीर के अंगांग को क्लींस करते हुए जाएगा। 72,000 ऑफ आवर नाडीज, पल्सेस जो होते हैं वो क्लींस होते जाते हैं। क्लींस होने से हम रोग से निरोगी हो जाएंगे, दुख से सुख की तरफ अपना चित्त जाएगा, मन आनंदमय हो जाएगा, हम रोग मुक्त हो जाएंगे। रोग मुक्त होने से हम अपना आध्यात्मिक जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं, दीप ज्ञान की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, जिससे हमारा थॉट जीरो हो गया, थॉटलेस स्टेट में आ गए। तो नाउ कीप इट योर माइंड आउट, दोनों गुणों के बीच अपना ध्यान रखिए, वहीं से अपना जर्नी शुरू करिए। जो भी आपके नजरों में आ रहा है कलर, जो भी दिखाई दे रहा है देखते हुए आगे बढ़िए। कुछ नहीं दिख रहा है अंधेरे टनल में, अब अपना जर्नी कंटिन्यू करिए। म्यूजिक के नादों को सुनते हुए हम अपना जर्नी आगे बढ़ा रहे हैं, दोनों गुणों के बीच के केव में, टनल में हम अपना जर्नी कर रहे हैं।
कुछ नहीं दिख रहा है। हम हर चीज को भूल के अपने आत्मा के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। उस स्थिति को अनुभव करिए, उस आनंद को आप अनुभव करिए। कितना सुंदर नजारा है। हमारे दिव्य चक्षु के सामने अपना चर्म चक्षु बंद है, चक्षु बंद है। अपना दिव्य चक्षु उस चीज को देखने के लिए, एक्टिवेट होने के लिए कोशिश कर रहा है। हमारे के बीच का पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होना चाह रहा है, एनर्जी से भर गया है। आनापान सती करते करते हम काय उपासना में जाते हैं। पूरा हमारा काया शरीर फ्रीज हो जाता है, तो विपස්සना की तरफ चलते हैं। विपස්සना है उठना, थर्ड आई उठना, थर्ड आई खुलना। थर्ड आई खुलेगा तो क्लियर पिक्चर हमें दिखने लगता है। इस स्थिति में अपना जर्नी आगे बढ़ाएं। अनुभव करते हुए, एक्सपीरियंस करते हुए आगे बढ़ें। इस बीच में कहीं आपका विचार आके हम आपको डिस्टर्ब करने लगा तो फिर अपने सहज श्वास की तरफ आ जाइए। जैसे आप सहज श्वास को ऑब्जर्व करते जाते हैं तो फिर आप थॉटलेस स्टेट में जाएंगे। या थॉटलेस स्टेट में गए फिर अपना जर्नी को कंटिन्यू करेंगे।
Hey there, have you ever wondered why only few percentage people become financially
मास्टर्स 2 मिनट मौन ध्यान करते हैं। Last 30 seconds, masters. जो डीप ध्यान में है वो ध्यान कंटिन्यू करें। जो ध्यान से बाहर आ गए वो धीरे धीरे अपने शरीर की प्रज्ञा में आ जाइए। अपना हाथ पैर हिलाइए। धीरे धीरे अपना हाथ खोल के आंखों के सामने रखिए। 5 4 3 2 1 रिलैक्स। धीरे से हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलिए और धन्यवाद व्यक्त करिए। ग्रेटिट्यूड, थैंक यू जितना आपको लगे थैंक यू करना। अपने शरीर के अंगांगों को थैंक यू बोलना है। अपने माता पिता को थैंक यू बोलना है। अपने गुरु को, अपने साथ जो ध्यान करे सारे ध्यानार्थियों को भी हम एक दूसरे को धन्यवाद व्यक्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। थैंक यू बोलने से वाइब्रेशन बढ़ता है। आज हमें एक प्रोसेस कराया है इसी का, बहुत अच्छा है। चलिए आप लोग जो ध्यान में वो कंटिन्यू